Good morning, dear friends. Our topic for today is time and work. And this is the topic you must have studied at your school level also. तो पहले अपन define करेंगे what is work and what is the relation between time and work. What is work? For doing any work, two inputs are required or two things are required. First is labor or men, number of men are required to complete that work. And second requirement is time. That is measured into number of days. कितने दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में. ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट है. कितने आदमी लगे और कितना टाइम लगा. नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज. सो दैट इज वर्क. So it is product of man and days. So I can write the formula like this. W is equal to M into D. और वर्क का यूनिट भी मैन डेज है. इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज. तो वर्क इज सेम. The product will also be same. M1 D1 is equal to M2 D2. Now how to apply this equation? Suppose painting work has to be done in a house. Painting or you can say whitewash. So suppose 12 men can complete in 4 days. So the work of painting is total 12 into 4, 48 man days. Okay. Now suppose the house owner wants to complete in 3 days. वो चाहता कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाए. 4 दिन की जगह 3 दिन. तो he will say tell to the contractor और ठेकेदार कि मुझे 3 दिन में वर्क कंप्लीट कराना है. आप आदमी बढ़ा लो. तो कितने आदमी बढ़ाएगा वो. तो वर्क तो 48 man days का ये तो दैट इज कांस्टेंट. नाउ he has to complete in 3 days. दैट इज लिमिटेशन कि भाई 3 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए. So now we can say how much men are required. 48 upon 3, 16 men. So he will employ 16 men. That means he will employ 4 extra men to complete the same work in 3 days. पहले 4 दिन में हो रहा था, अब 3 दिन में होगा. तो पहले 12 आदमी लग रहे थे, अब आदमी बढ़ा दिया था, 16 आदमी कर दिए. तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. Because work is constant, 48 man days. So now we can see the relation between man and days. It is inverse relation. Number of men और number of days में कैसा relation है? Inverse. If man increases, days decreases. Number of men decreases, the time or the number of days will increase. That's why I have given you that equation. M1 D1 is equal to M2 D2 is equal to work.
Now we'll see the unitary method. For solving work-based questions. Unitary method means unit work, or we can say work done in one day. So this is important. How much work is done in one day? Suppose there is a man A or labor called A. He completed the work in 8 days. Small a. तो अकेला काम करे वो कैपिटल ए, तो वो स्मॉल ए डेज में वर्क कंप्लीट कर देगा. तो व्हाट विल बी वन डे वर्क ऑफ ए? So that will be 1 by A work. This step is important. एक दिन में कितना काम होगा? 1 upon A. जैसे मान लो 4 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो 1 day work will be complete only 1 by 4 work. That is 1 day work of A. एक दिन में 1 by 4 करेगा, 2 दिन में 2 by 4, 3 दिन में 3 by 4, 4 days में 4 by 4 of complete work. Complete work means one work. So 4 days he will complete. The 1 day work of A will be 1 by 4. So if he is completing in 8 days, 1 day work will be 1 by 8. Now similarly, if there is another worker who is called B, he completes the work, same work, in small b days. तो B वाला जो वर्कर है वो small b days में same work complete कर देता है. Now then we will calculate 1 day work of B. It will be 1 by B work. Suppose he is completing in 3 days. So 1 day work will be 1/3. तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले अपने को 1 day का वर्क कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो A is doing in 8 days, so 1 day work of A is 1 by A work, and B is completing work in B days, so 1 day work of B is 1 by B, 1 divided by B. Now suppose A and B are working together. दोनों मिलके काम कर रहे हैं. They are working together. So what will be 1 day work of A and B together? तो A ने एक दिन में कितना काम किया? 1 by A, प्लस B ने कितना काम किया? 1 by B. So that will add work will 1 day work of A will add to 1 day work of B. दोनों ऐड हो जाएंगे. तो 1 by A plus 1 by B वर्क ये कंप्लीट हुआ एक दिन में जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं A and B. So now we will derive one equation from this. A plus B 1 day work 1 by A plus 1 by B is equal to, if we take the LCM, A plus B upon AB. ठीक है, दिस इज 1 day वर्क. तो दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. सो दे विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज? तो ये 1 day वर्क है A plus B upon AB. Now you have to inverse this ratio. So A into B upon A plus B days.
तो दिस इज द इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड। जब ए और बी मिलके काम करेंगे एक साथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, they will complete the same work in a into b upon a plus b days. That means number of days will decrease or reduce now, कम हो जाएंगे जब दोनों मिलके काम करेंगे. So this is the important equation. Now we'll take an example to understand this better. A into b upon a plus b. This is the number of days. Suppose A is 10 days to complete the work and B is 15 days to complete the work. So A and B working together will complete into 10 into 15 upon 10 plus 15. इसका फर्दर सॉल्व करेंगे 150 अपॉन 25 6 days. तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 6 दिन में, 6 days. अकेले कितने कर रहा था? ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में. दोनों मिलके करेंगे तो हमसे टाइम कम हो जाएगा. It is less than 10, is less than 15. It is 6 days. So this is the important formula for two workers if they are working together. Working together means from start to finish they are working together. Nobody is leaving in between or nobody is joining in between. एक साथ काम शुरू किया लास्ट तक, जब तक फिनिश नहीं होता दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं. Then you can apply this formula. Now suppose there is a 3 workers A, B, C. A 8 days में कर रहा है कंप्लीट, B days में कर रहा है, C days में कर रहा है. तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? वन बाय ए प्लस वन बाय बी. तो दिस मच वर्क इन वन डे. इतना वर्क कंप्लीट हो जाएगा. वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी. जब तीनों मिलके काम करेंगे एक साथ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो वन डे वर्क विल बी कंप्लीट विल बी वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी. A plus B plus C working together will complete the work in A into B into C upon A into B plus B into C plus C into A. तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है 3 वर्कर्स के लिए. जब 3 वर्कर ए बी सी एक साथ काम करना है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो कितने दिन में फिनिश करेंगे? A into B into C upon AB plus BC plus CA days. ठीक है. तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये 3 वर्कर के लिए. 2 वर्कर के लिए फॉर्मूला था A into B upon A plus B. ठीक है. तो दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. जैसे ये भी अपन एग्जांपल लिया था, इसमें ए कितना था? 10 days, B was 15 days, और सपोज C is 20 days. तो तीनों मिलके अब कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो अप्लाई दैट फॉर्मूला. तो 10 into 15 into 20 अपॉन 10 into 15 plus 15 into 20 plus 20 into 10. ठीक है. A to B to C अपॉन AB plus BC plus CA. तो उस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू डाल दिया. तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होल नंबर नहीं आएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा. 60 अपॉन 13 days. ठीक है. रफली approximately 4.6 days.
So this is the time taken by 3 workers working together. 60 upon 13 or 4.6 is approx. The formula का validity is when they are working together from start to finish of the work. Means they have started together and working together till the work is finished or completed. बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा या कोई नया बंदा ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो कंडीशन आ जाती है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। अगर इस कंडीशनल हो जाता है कुछ, है ना, तो क्या किस टाइप का वेरिएशन हो सकता है वो अपन देखेंगे। उसमें फिर क्या करना है, अलग अलग इंडिविजुअल वर्क निकाल के ऐड करना है, ठीक है। एक एक दिन का सबका अलग अलग काम ऐड होगा, फिर बीच में कोई छोड़ के आ रहा तो उसका फिर वहां पे स्टॉप हो जाएगा, कोई नया बंदा आ गया तो उसका वर्क उस दिन से ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा इज वी कैन ऐड ओनली वर्क विद वर्क, यू कैन ऐड द वन डे वर्क ऑफ ईच वर्कर। बट वी कैन नॉट ऐड द टाइम, नंबर ऑफ डेज ऐड नहीं होते हैं, ऐड क्या होता है वन डे वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ विल से सम वेरिएशन वेयर दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर। जब एक साथ काम नहीं करना है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। So I will take an example to clarify this. So there are two workers, Chandni and Dilip. They work on alternate days. Means now they are not working together. Alternate days में काम करते हैं, मतलब एक दिन चांदनी काम करेगी, अगले दिन दिलीप काम करेगा, फिर वापस चांदनी आ जाएगी काम पे, तो अकेले काम करेगी, फिर उसके नेक्स्ट डे दिलीप अलोन विल वर्क, ठीक है। सो दे आर वर्किंग ऑन alternate days. Chandni alone can complete the work in 9 days. And Dilip alone in 12 days. ठीक है, ये इनके काम करने की कैपेसिटी या स्पीड है। चांदनी is more efficient. She can alone complete the work in 9 days. दिलीप की स्पीड कम है, स्लो, he takes 12 days to complete the same work, ठीक है। तो चांदनी कितने 9 दिन में कंप्लीट करती काम और दिलीप 12 days में, ठीक है। Now moving further on, if Chandni starts the work,
मतलब फर्स्ट डे काम का इसने शुरू किया चांदनी ने, you know in how many days work will be completed, ये क्वेश्चन है। So Chandni is starting the work means first day Chandni is working, then second day Dilip, and so on, alternate. Then in how many days work will be completed? कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा, एग्जैक्ट अपने को निकालना है। ठीक, आंसर इसका डेसिमल में, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। We have to calculate exactly. Now how to solve this problem? We can see the solution. So first we will see Chandni can do the work in 9 days. So what is 1 day work? यहाँ पे 1 day work, 1 day work में कितना होगा चांदनी का? 1/9 पार्ट। और D मीन्स दिलीप, वो कितने दिन में करता है? 12 डेज में कंप्लीट, तो 1/12। ठीक है, तो दिलीप का 1 डे वर्क कितना? 1/12, और चांदनी का 1 डे वर्क 1/9। ठीक है, दिस इज क्लियर। मैंने एक एक दिन का काम निकाल लिया उनका, यूनिट डे वर्क 1/9 एंड 1/12 फॉर चांदनी एंड दिलीप। नाउ सी द पैटर्न, हु हैज स्टार्टेड द वर्क? चांदनी, देन दिलीप, देन अगेन चांदनी, देन दिलीप, चांदनी दिलीप, एंड सो ऑन। तो ये आपका पैटर्न बन गया वर्क का, CD CD। ठीक है, नाउ विल ऐड, एक दिन में चांदनी ने कितना काम किया है? 1/9, और दिलीप ने एक दिन में 1/12। ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे 1/9 प्लस 1/12, तो एलसीएम लेंगे 36, 4 प्लस 3 और 7/36 वर्क। ये कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? नॉट इन 1 डे बट 2 डेज। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 दिन का काम है, क्योंकि अल्टरनेट डे काम कर रहा है। फर्स्ट डे ओनली चांदनी ने काम किया, सेकंड डे ओनली दिलीप, तो 1 + 1 2 डेज, 2 दिन में इतना काम कंप्लीट हुआ। कितना? 7/36 पार्ट। ठीक है, तो ये हमने समझ गया, ये बेसिक स्टेप है। मैंने पैटर्न बना लिया, फिर उनका 1 डे वर्क ऐड कर दिया, 1/9 एंड 1/12 चांदनी दिलीप। तो ये 2 दिन का काम हुआ, 7/36, 7/36 वर्क। वन वर्क मीन्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तब वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए 7/36 वर्क ही कंप्लीट हुआ 2 दिन में। तो डिनोमिनेटर क्या है? 36। 7 का कौन सा मल्टीपल इसके नियरेस्ट आएगा? 36 के, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तभी वर्क कंप्लीट होगा। तो 7 5 जा 35, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 35/36 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 × 5 10 डेज। क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35। ठीक है, तो राइट साइड में भी उतना ही मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो 2 दिन में 7/36 हो रहा था, तो 10 दिन में 35/36 वर्क कंप्लीट होगा। तो स्टिल वी कैन सी सम वर्क इज लेफ्ट बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क लेफ्ट अभी कितना बचा है? तो कंप्लीट वर्क मींस 1 वर्क, तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 35/36। ठीक है, और 36 - 35
1/36। तो 1/36 वर्क अभी बचा है कितने दिन के बाद? आफ्टर 10 डेज, 10 दिन कंप्लीट हो गए, तो उसमें 35/36 वर्क कंप्लीट हो गया दोनों को मिला के, चांदनी एंड दिलीप। स्टिल 1/36 वर्क इज लेफ्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर अप टू नाउ। तो 10 डेज में आपका 35/36 वर्क कंप्लीट हो चुका है। वर्क लेफ्ट इज 1/36 पार्ट। ठीक है, इतना वर्क बचा 1/36। अब 11th डे में कौन काम करने आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चांदनी और दिलीप। नाउ यू सी द पैटर्न, चांदनी इज वर्किंग ऑन ऑड डेज, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, लाइक दिस। तो 11th मींस ऑड डे, तो चांदनी विल बी देयर। So Chandni will complete this work. तो Chandni will complete the remaining work, जो बचा है कितना, 1/36। क्योंकि 11th डे में चांदनी की ड्यूटी है, वो आएगी काम करने, शी विल बी ऑन द वर्क। ठीक है, और वर्क कितना बचा है, 1/36। So time taken by Chandni to complete this work will be चांदनी एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/9, और बचा कितना है, 1/36। तो डिवाइड 1/36 डिवाइड बाय 1/9 और 9/36 दैट इज 1/4 डेज। ये काम बहुत ही कम बचा दे 1/36, और चांदनी एक दिन में कर सकती है 1/9। तो मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों फ्रैक्शन को, तो 1/4 डेज में ही कंप्लीट कर देगी जो रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, 1/36 डिवाइड बाय 1/9, तो दैट इज 9/36 और 1/4 डेज। तो टोटल टाइम अब कितना लग गया, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर कंप्लीट वर्क, तो 10 दिन पहले हुए थे 10 प्लस लास्ट में चांदनी ने 1/4 डेज और लिया, तो 10 प्लस 1/4 और वी कैन से 10.25 डेज। So this is the exact answer. And answer can mean decimal or fraction. That also you note. जरूरी नहीं होल नंबर ही होगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो इट मीन फ्रैक्शन और डेसिमल। तो 10.25 डेज में कंप्लीट होगा वर्क। तो ये कौन सा एग्जांपल लिया था जहाँ पे दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, दे वर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो इस टाइप का वेरिएशन कर सकते हैं। तो 1 डे वर्क निकाल के ही ऐड करना है। Now we'll see the concept of efficiency, generally measured in percentage. What is efficiency of a worker? Speed of doing work. Speed of doing work. कुछ वर्कर जो स्किल्ड होते हैं उनकी हाई एफिशिएंसी होती है, मतलब सेम वर्क को वो जल्दी कर सकते हैं कम टाइम में। और जो अनस्किल्ड और अनट्रेन्ड वर्कर होते हैं उनकी लो एफिशिएंसी होती है, तो उसी वर्क को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, so efficiency is also important. So now what is the relation between efficiency and time? Efficiency is inversely proportional to time. Time is measured in number of days. Efficiency is inversely proportional to number of days.
इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ EA इंटू DA इज इक्वल टू EB इंटू DB। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। A and B are different workers। E मतलब एफिशिएंसी, D नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वर्कर A। तो उसका जो प्रोडक्ट है EA इंटू DA इज इक्वल टू EB इंटू DB, एफिशिएंसी ऑफ B इंटू नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B DB। तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ये इक्वल होगा EA इंटू DA इज इक्वल टू EB इंटू DB फॉर सेम वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम आवर बुक। So this is from our book, question number 15. There are two girls, Sakshi and Tanya. Sakshi can do a piece of work in 20 days. इस 20 days में वर्क कंप्लीट कर सकती है। तान्या, सेकेंड गर्ल इज तान्या। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट। ये गिवन है क्वेश्चन में। Tanya is 25% more efficient than Sakshi. मतलब उसको कम टाइम लगेगा, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है, तो वही अपने को निकालना है। नंबर ऑफ डेज इन विच Tanya can do the same work, number of days taken by Tanya to complete the same work। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्कर्स है, साक्षी एंड तान्या। साक्षी कैन डू द वर्क इन 20 days, तान्या कैन डू द सेम वर्क इन how many days? And Tanya is 25% more efficient than Sakshi. This is given. ठीक है, तो now I will say apply the same formula जो अपन ने अभी देखा। Efficiency of Sakshi into number of days taken by Sakshi is equal to efficiency of Tanya into number of days taken by Tanya dt। तो ये dt हमने कैलकुलेट करना है। आपने गिवन क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय Sakshi is 20, this is 20, but efficiency is not given for Sakshi, so I can assume 100, that is in percentage, so always you can assume 100 for Sakshi, 100% efficiency। ठीक है, अब तानिया is 25% मोर, लेकिन इसका 25% ज्यादा 100 का, दैट मीन्स 125, 100 प्लस 25, 125, तो ये फायदा 100 लेने का। तो मैंने साक्षी की एफिशिएंसी ली 100%, तो तानिया की ऑटोमेटिकली हो गई 125%, क्योंकि 25% हो ज्यादा। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, अपनी इक्वेशन बन गई। So days taken by Tanya will be 100 into 20 upon 125। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो you will get the answer as 16 days। So this is the answer। तानिया कितने दिन में कंप्लीट कर देगी? 16 days में, सेम वर्क, because she is 25% more efficient than Sakshi। तो उसको आप देखिए कम टाइम लगा, साक्षी को 20 दिन लग रहा है, तो इसको 16 दिन में हो गया, 16 days कंप्लीट।
तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट देखा कि आप 100% ले सकते हो अगर एफिशिएंसी करनी है। तो मैंने साक्षी की 100% की एफिशिएंसी तो तानिया की 125 होगी। So this was from our question from our book. Nowadays, they are asking in campus some question like this: input and output based questions. ठीक है, input and output means this is also related to work. What is the input and what is the output? Simple question we can take to understand this concept of input and output. 8 monkeys can eat 8 bananas in 8 minutes. ठीक है, 8 बंदर है, वो 8 केले खा रहे हैं 8 मिनट में। ठीक है, then 12 monkeys will eat 12 bananas in how much time, how many minutes? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का अपना फाइंड करना है, कितने मिनट में 12 बंदर 12 केले खाएंगे। यदि 8 बंदर 8 केले खा रहे हैं 8 मिनट में। ठीक है, तो your impulsive answer will be 12 मिनट। ठीक है, जो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा impulsive आंसर 12 मिनट्स, दैट इज रॉन्ग। आंसर इज नॉट 12 मिनट। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेथड क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, उसका रेशियो देखना है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो पहले इनपुट क्या था, 8 मंकी थे। ठीक है, 8 मंकी, उनको लग रहे थे 8 मिनट, और आउटपुट क्या निकल रहा था, 8 बनाना खा रहे थे, है ना। 8 monkeys वर ईटिंग 8 बनाने थे 8 मिनट। तो ये इनपुट है मंकी और टाइम, और आउटपुट क्या निकल रहा है, कितने केले खाए उन्होंने। अब सेकेंड केस में क्या है, मंकीज कितने हैं, 12 मंकीज है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो सपोज x मिनट। यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए, 12 बनाना। ठीक है, 12 मंकी, 12 बंदर 12 केले कितने देर में खाएंगे, तो x मिनट। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, इसका रेशियो इक्वल रहेगा, लेफ्ट साइड में इनपुट का रेशियो और राइट साइड में आउटपुट का रेशियो सेम रखना है। तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 12 इंटू एक्स इक्वल टू 8 बाय 12। ठीक है, रेशियो इक्वल होगा इनपुट और आउटपुट का, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंडा है, रेशियो आपको कांस्टेंट रखना है। तो लेफ्ट साइड में इनपुट का रेशियो क्या होगा, 8 इंटू 8 अपॉन 12 इंटू एक्स, और राइट साइड में आउटपुट का रेशियो क्या है, 8 बनाना अपॉन 12 बनाना, 8 बाय 12। ठीक है, अब आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 12 से भी 12 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्स क्या आएगा, 8 मिनट। आंसर 8 मिनट ही है, ना कि 12 मिनट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट
concept for such type of question, input and output based question. ठीक है, तो 12 बंदर भी 12 अकेले खाएंगे 8 मिनट में. आंसर is still 8 minutes. We will take one more example. This is from our book to understand it further. क्योंकि आजकल कैंपस में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. ये बुक का क्वेश्चन नंबर है 6. इसमें क्या बोलना है, पेट्रोल बैंक नीड्स 56 men to fill petrol 20,000 cars in 72 days. Men, days और आउटपुट क्या निकल रहा है, कितनी कार में पेट्रोल भर. 56 men into 72 days. उन्होंने कितनी कार में पेट्रोल भर दिया, 20,000 कार्स. ठीक है, तो ये आपका आउटपुट है. पेट्रोल पंप पे 56 men were working for 72 days and they filled the petrol in 20,000 cars. Now further in this question, how many men does the bank need to service 30,000 cars in 63 days? ठीक है, अब नंबर ऑफ मेंस निकालना है. तो सपोज दैट इज x men इनटू, अब डेज कम होगा 63 डेज. और आउटपुट क्या चाहिए आपको, कितनी कार में पेट्रोल भरना है, 30,000. ठीक है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मैन हैव टू इंक्रीज. आउटपुट भी ज्यादा हो रहा है और नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है. तो अब वही अपन रेशियो लेंगे. तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, 56 इंटू 72 अपॉन x इंटू 63 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 30,000. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. इनपुट का रेशियो और आउटपुट का रेशियो सेम कर दिया. लेफ्ट साइड में इनपुट है 56 इंटू 72 डिवाइड बाई x इंटू 63. राइट साइड में नंबर ऑफ कार्स का रेशियो है 20,000 अपॉन 30,000. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 56 इंटू 72 अपॉन x इंटू 63. 20,000 अपॉन 30,000 क्या हो जाएगा रेशियो, 2/3. सिंप्लीफाई हो जाएगा. x is 56 into 72 into 3 upon 2 into 63. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है. इजीली कैन सॉल्व एंड सिंप्लीफाई. तो फाइनल आंसर यू विल गेट इज 96. That means 96 men are required. What was x number of men? तो 30,000 कार्स में पेट्रोल भरना यदि आपको 63 डेज में, you need 96 men. So now I hope the concepts are clear to you about the time and work. Further questions you can solve from our textbook and online portal, and we will discuss any doubts in the doubt session. Thank you for listening.
So now we'll discuss about pipes and cistern. This is the second part of the topic, time and work. तो टाइम एंड वर्क का ही कंटिन्यूशन है ये, पाइप्स एंड सिस्टर्न, मतलब सेम कॉन्सेप्ट सब यहाँ पे अप्लाई होंगे टाइम एंड वर्क के। पाइप मीन्स वाटर पाइप, सिस्टर्न मीन्स स्मॉल टैंक, स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, पाइप वाटर पाइप। ठीक है, हम लोग सिस्टम को या टैंक को फुल करना है। कैसे फुल करेंगे? विद हेल्प ऑफ वाटर पाइप्स। पाइप से पानी सप्लाई करके उस टैंक को फिल करना है। तो सपोज आई विल ड्रॉ ए डायग्राम लाइक दिस। ये आपका स्मॉल टैंक का सिस्टम है। ठीक है, इसमें पानी भर रहा है। So this is the system. A and B, they are inlet pipes. ठीक है, जिनके द्वारा पानी भरा जा रहा है इस सिस्टम में या टैंक में। तो दो पाइप यहाँ पे इनलेट पाइप्स हैं, A and B, which are filling the water in the tank. ठीक है, A alone can fill the tank in small a hours. B alone can fill the tank in small b hours. ठीक है, मतलब यदि पाइप A चालू रखें तो अकेले वो स्मॉल ए आवर्स में टैंक को फुल भर देगी पानी। उसी प्रकार पाइप B चालू रखें तो इट कैन फिल द टैंक इन स्मॉल b आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 1 घंटे में कितनी टंकी भरी, 1/A प्लस 1/B। ठीक है, इतना टैंक भरेगा 1 घंटे में, 1/A प्लस 1/B। और अगर A और B एक साथ दोनों पाइप से पानी भर रहे हैं तेजी से तो टाइम कम हो जाएगा। कितने घंटे में टंकी भरेगी? तो सेम फार्मूला आई कैन अप्लाई, AB अपॉन A प्लस B ओवर्स, जो टाइम एंड वर्क में देखा था फॉर्मूला, A इंटू B अपॉन A प्लस B। ठीक है, तो उतने टाइम में ये टैंक फुल हो जाएगा अगर दोनों पाइप एक साथ चालू हैं, दे आर फिलिंग द टैंक टुगेदर। ठीक है, तो टाइम टेकन विल बी A इंटू B अपॉन A प्लस B आवर्स, बिकॉज इन 1 आवर हाउ मच टैंक विल फिल, 1/A प्लस 1/B। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन है, जो टाइम एंड वर्क का था उसमें क्या डिफरेंस है देखिए। अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। A pipe is filling in A hours, B pipe is filling the tank in small b hours। ठीक है, इनलेट पाइप से। अब मान लो आपका टैंक फुल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बिल्डिंग के छत के ऊपर एक जो पानी की टंकी है, टैंक फुल हो गया। तो अब आपको इसको वाटर को यूज़ करना है। ठीक है, आपके वॉशरूम में या बाथरूम में आपको पानी चाहिए, तो उसके लिए एक और दूसरे टाइप का एक पाइप यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आउटलेट पाइप। तो C इज द आउटलेट पाइप। ठीक है, उससे पानी बाहर निकल रहा है। C आवर्स में वो आप टंकी को खाली कर सकती है, इट कैन एम्प्टी द टैंक इन C hours, small c, and outlet pipe
और वी कैन हैव लीकेज ऑल्सो। यदि टैंक के बेस में लीकेज है, कहीं भी लीकेज है उसमें, तो उससे पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इनलेट पाइप बेसिकली क्या कर रही है, फिलिंग द टैंक, और आउटलेट पाइप और लीकेज का काम क्या है, एम्प्टी, टैंक को खाली करना, पानी उसमें से बाहर निकलना, तो इट इज एम्प्टिंग द टैंक। आउटलेट पाइप और इट कैन बी लीकेज, दोनों काम क्या है, उसको खाली करना, टैंक को एम्प्टी करना। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव टाइप ऑफ वर्क। जो इनलेट पाइप्स हैं वो पॉजिटिव वर्क करेंगे बिकॉज दे आर फिलिंग द टैंक। लेकिन आउटलेट पाइप या लीकेज किस टाइप का काम कर रही है, नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो खाली कर रही है टंकी को, एम्प्टिंग द टैंक। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है यहाँ पे और एक नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब मान लो तीनों पाइप एक साथ चालू कर दी, ए बी सी वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ए और बी पानी भर रही है और साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे सी पाइप भी खोल दी, उसका वॉल्व खोल दिया, तो पानी वो कहाँ से खाली भी हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभी तीनों पाइप एक साथ काम कर रही हैं, इसमें ए और बी इनलेट है, पॉजिटिव वर्क है, और सी इज आउटलेट पाइप जिसका कि नेगेटिव वर्क है। ठीक है, तो 1 आवर में देखेंगे कितना टैंक भरा, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी, इतना पार्ट ऑफ टैंक फुल होगा। ये इंपॉर्टेंट इसमें इक्वेशन है, एक घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी। वाई माइनस, बिकॉज सी इज आउटलेट पाइप है ना, उसका वर्क एम्प्टी करना है, तो नेगेटिव वर्क है। ए और बी इनलेट पाइप है, वो टंकी को भर रही है पानी, तो उनका पॉजिटिव वर्क है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, पॉजिटिव वर्क भी और नेगेटिव वर्क एक साथ चल रहा है। तो मैं देखूंगा एक घंटे में कितनी टंकी भरेगी, हाउ मच पार्ट ऑफ टैंक फुल, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी। अब ये जो भी रेशियो आएगा उसको जब आप इन्वर्ट करोगे, उल्टा करोगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा कितने टाइम में टंकी फुल होगी, हाउ मच टाइम टू फिल द टैंक, दैट विल बी इनवर्स ऑफ दिस रेशियो। किसका रेशियो, जो 1 आवर वर्क हुआ है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए इज 4 आवर्स, बी इज 6 आवर एंड सी इज 9 आवर। ठीक, ए और बी कौन सी पाइप है, इनलेट, और सी जो है वो आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो ए और बी पॉजिटिव वर्क कर रही है और सी नेगेटिव वर्क कर रही है। तो देखेंगे एक घंटे में कितनी टंकी भरी, तो 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 9 है ना, तो ये 1 बाय 9 माइनस होगा क्योंकि आउटलेट पाइप है, नेगेटिव वर्क होगा। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करें, तो एलसीएम ले लो आप, 36 तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 माइनस 4, 9 प्लस 6 15 माइनस 4 11, 11 बाय 36 वर्क हुआ, मतलब 11 बाय 36 पार्ट ऑफ टैंक फुल हुआ है। कितने टाइम में, 1 आवर में। ये 1 आवर का वर्क है, एक घंटे में 11/36 पार्ट, 11 बाय 36 पार्ट ऑफ टैंक फुल हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ कैसा है, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 9। ठीक है, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव वर्क है तो प्लस किया मैंने, सी वॉज आउटलेट पाइप एम्प्टी, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप 1 घंटे का काम निकाल लो, 1 घंटे में कितनी टंकी भरी, 11/36 पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कितनी देर में फुल होगी फुल टैंक। तो मैं मुझे 1 घंटे का वर्क था, 11/36, उस रेशियो को आप
इन्वर्ट कर दूंगा 36/11 आवर्स। ठीक है, अब जस्ट आपको उसको इन्वर्ट करना है, रेशियो को उल्टा करना है टू गेट योर आंसर कि कितने देर में टैंक फुल होगा या वो सिस्टम फुल होगा। ठीक है, 36/11 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 3.3 आवर्स। ये आपका अप्रोक्सीमेट टाइम आ गया। टैंक विल बी फुल इन 36/11 और रफली 3.3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क है इसमें पाइप एंड सिस्टम में। तो लीकेज या जो आउटलेट पाइप है वो नेगेटिव वर्क करती है और इनलेट पाइप जो है वो पॉजिटिव वर्क करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है कैंपस में। दिस इज बेस्ड ऑन लीकेज। ठीक है, टैंक में लीकेज है, इससे धीरे धीरे पानी रिस रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो भी नेगेटिव वर्क हो रहा है क्योंकि पानी आपका टैंक से बाहर निकलता है, एम्प्टी कर रहा है उसको। तो व्हाट वाज द एक्चुअल क्वेश्चन? ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। यहाँ पे एक ही पाइप है, वो टंकी को कितने देर में भर सकता है? 10 घंटे में, 10 आवर्स। ठीक है, बट ड्यू टू लीकेज इन टैंक, टैंक के बेस में कुछ लीकेज हो गई है। ठीक है, जिससे धीरे धीरे पानी निकल रहा है। तो वो भी कंटिन्यूसली निकलता जा रहा पानी, हमेशा निकलता रहेगा। बट ड्यू टू लीकेज इन द टैंक इट टेक्स 5 more hours to fill the tank completely। ठीक है, तो लीकेज के कारण क्या हुआ? 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं टैंक को फुल करने में। मतलब पहले आपको 10 घंटे लग रहे थे जब लीकेज नहीं था, लेकिन अब लीकेज के कारण 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब अब एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है टैंक को भरने में? 10 + 5 15 आवर्स। ठीक है, बट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर? यह क्लियर हो गया, एक पाइप जो है टैंक को 10 घंटे में फिल कर देता है, लेकिन लीकेज के कारण 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 more hours टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस वाज इन हाउ मच टाइम कैन द लीकेज empty the full tank। ठीक है, अब टैंक आपका फुल हो गया है, तो लीकेज के कारण कितनी देर में पूरा खाली हो जाएगा? ठीक है, इन हाउ मच टाइम कैन द लीकेज empty द फुल टैंक? दिस वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड कि कितनी देर में लीकेज उस टंकी को खाली कर देगा जो पूरी भर चुकी है। सो आई विल टेक दैट टाइम एज x आवर्स। ठीक है, लीकेज एम्प्टी टाइम को आप ले लो x आवर्स। ठीक है, ये x अपने को फाइंड करना है। x क्या है? कितने टाइम में लीकेज उस फुल टैंक को एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनानी है? 1 आवर की। ऑलवेज मेक द इक्वेशन फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में क्या हो रहा है? तो पाइप कितना भर रहा है 1 घंटे में? कितना पार्ट ऑफ टैंक भर रहा है? 1/10, क्योंकि द पाइप इज टेकिंग 10 आवर्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर रही है? 1/10 पार्ट
और लीकेज का क्योंकि नेगेटिव वर्क है तो -1/x, क्योंकि x घंटे में वो खाली कर रही है टंकी लीकेज, तो 1 घंटे में लीकेज के कारण कितना टंकी खाली होगी 1/x। ठीक है, इक्वल टू वॉट अभी इंपॉर्टेंट है, राइट साइड में क्या आएगा इक्वल टू, तो लीकेज के कारण कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है 5 घंटे ज़्यादा। ठीक है, मतलब 10 + 5, अब 15 आवर्स लग रहे हैं टैंक को पूरा भरने में, तो 1 घंटे में टैंक कितना भरेगा 1/15। ठीक है, इज इक्वल टू 1/15। तो ये आपकी अब इक्वेशन बन गई 1/10 - 1/x = 1/15। So this now we have to solve 1/10 - 1/x = 1/15। ठीक है, वापस लिख देता हूँ मैं आपको इक्वेशन में 1/10 - 1/x = 1/15। ठीक है, तो 1/x आपका क्या हो जाएगा 1/10 - 1/15। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए आप 10 और 15 का, 33 3 - 2, तो 1/x कितना आ गया 1/30। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा आपका 30 यूनिट आवर्स। तो ये अपना आंसर आ गया, x = 30 आवर्स, मीन्स 30 आवर्स में वो टैंक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा ड्यू टू लीकेज। ठीक है, 1/x = 1/10 - 1/15, दैट इज इक्वल टू 1/30। तो x = 30 आवर्स, तो दिस इज अवर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन आपने देखा, इस टाइप के कैंपस में आ सकते हैं, ये एक्चुअल क्वेश्चन था कैंपस में। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यहाँ पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या है, 1 आवर की इक्वेशन बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, कितनी टंकी भर रही है, तो ये 1 आवर की इक्वेशन है 1/10 - 1/x = 1/15। उसी को सॉल्व करके अपना आंसर आ गया 30 आवर्स, ड्यू टू लीकेज द टैंक विल बी एम्प्टीड इन 30 आवर्स, 30 घंटे में खाली हो जाएगी। तो फर्दर you can solve the questions from our textbook and online portal. Any doubts we can discuss in our doubt sessions later on. Thank you for watching and listening.